پاکستان بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کو تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو۔ کہا نیوٹرل مقام پر بھارت کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ خطہ دشمنی سے نہیں تجارتی روابط اور پارٹنرشپ سے چل سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر اہم تنازع ہے۔ بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے آج تک ثبوت نہیں دیے۔ پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ سے تعلقات خراب کرنا نہیں۔ مستحکم افغانستان۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں۔ بانی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے، سرحدیں کھولیں اور 30-40 ہزار طالبان اندر آ گئے، پھر سے زندہ ہو گئے۔ ہم یہ دوبارہ بھی کر لیں گے، مگر بانی کا یہ فیصلہ بہت افسوسناک تھا۔ افغانستان کی سرحدیں نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ مزید بولے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دہائیوں سے امریکہ میں امریکی قانون کے تحت قید ہیں۔ پاکستان امریکہ کی منڈیوں تک مؤثر رسائی چاہتا ہے۔ پاکستان امریکہ سے ایڈ نہیں تجارت چاہتا ہے۔ امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب۔ کہا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات انتہائی مفید رہی۔ باہمی شراکت داری پر زور دیا۔ AIIT انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن ہمارے اور دنیا کے لیے اہم ہے۔ پاکستان امن پسند ایٹمی ملک ہے۔ تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں امریکی کردار کو سراہتے ہیں۔ واشنگٹن میں 2 بڑوں کی بیٹھک۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم کا عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔ کہا پاک بھارت کشیدگی میں صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین ہے۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ پاکستان امریکی کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش منزل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ بولے عالمی و علاقائی امن کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات میں تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ زراعت، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبہ جات میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ ملاقات میں میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا امریکی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ملاقات بہترین رہی۔ مارکو روبیو کے ساتھ افغانستان، ایران سمیت غزہ کی صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا مارکو روبیو سے ملاقات میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، IT، AI اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز رہی۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سیہونی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کے غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کی۔ کہا سیہونی حکومت فلسطینی شناخت کو مٹانے کے لیے طویل المدتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ فریقین نے سیہونی جارحیت کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورہ چین میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سمیت سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر ہان ینگ اور وزیر خارجہ وانگ یی سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ CPEC کے تحت ابھرتے علاقائی اور عالمی منظرنامے پر گفتگو۔ دونوں ممالک کی قیادت کا 2 طرفہ تعلقات کی گہرائی پر اطمینان کا اظہار۔ شراکت داری بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ چینی حکام کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک افواج کے کردار کی تعریف۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ گارڈ آف آنر پیش۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چین سے ملاقات۔ سلامتی اور دفاعی تعاون پر جامع تبادلہ خیال۔ کہا پاک چین دفاعی تعاون کو توسیع دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین سے بھی ملے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کی کوشش مسترد۔
सेनेट में इसराइली इक़दामात की खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। मतन के मुताबिक फ़लस्तीन के लोगों के साथ ये ऐवान मुकम्मल तौर पर हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, यह अफसोसनाक अमल बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के हुकूक और आलमी असूलों को मुसलसल नज़रअंदाज करने की अक्कासी है। काबिज़ इसराइल की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की हमास को धमकी। कहा, हमास की क़यादत गजा में जंग बंदी के लिए मुआहिदा नहीं करना चाहती बल्कि मरना चाहती है। हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। अमेरिकी वफ्द को मुशावरत के लिए दोहा से वापस बुलाया। फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के बयान पर लफ्जी वार। बोले, मैक्रोन के बयान की कोई अहमियत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बरतानवी पार्लियामेंट के 125 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म के स्टारमर को खत लिखा। बरतानिया 1980 से दो रियासती हल की हिमायत करता आया है। मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीन को तस्लीम करना मौक़िफ़ को हकीकत का रूप देगा। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र की इसराइली बिल की मज़म्मत, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक का फ्रांसीसी सदर के बयान का खैर मकदम। सऊदी अरब ने फ्रांसीसी फैसले को मुस्बत करार देते हुए दीगर ममालिक से भी मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए इसी तरह के इक़दामात उठाएं। हस्पानवी वज़ीर आज़म का कहना है, दो रियासती हल ही क़याम अमन का वाहिद हल है और उसमें फ्रांस का शामिल होना खुशाइंद है। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि मज़लूम फ़लस्तीनी आवाम के लिए जायज़ हक़ खुद इरादियत की हिमायत दुरुस्त फैसला है। पाकिस्तान सैलाबी रेलों की ज़द में आ गया। चिलास के बाद गांछे में सैलाबी रेलें ने तबाही मचा दी। नाला कंदूस में तुग़यानी से 50 से ज़ायद घर, दर्जनों दुकानें, मसाजिद और सड़कें तबाह। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 9 अफराद जम बहक, 12 लापता। दयामिर में सैलाबी रेला गुजरने के बाद तबाही के मनाज़िर। मट्टी में धंसी गाड़ियों में सियाहों का सामान मौजूद। सैलाब चट्टानों को सड़कों पर धकेल गया। पाक फौज और GB स्काउट्स का रेस्क्यू ऑपरेशन। 300 से ज़ायद सियाह और मुसाफिर महफूज मुकाम पर मुंतकिल। एबटाबाद के सियाहती मुकाम ठंडियानी में लैंड स्लाइडिंग से पुल टूट गया। ठंडियानी का कई देहात से राबता मुनक़ता। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सियाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। शिगर के नवाही इलाका कायमाबाद तसर में सैलाबी रेले के बायस फसल तबाह। खेत खलियान भी पानी की नजर हुए। झील सैफुल मलूक के करीब क्लाउड ब्रस्ट। कंडोरा नाला में तुग़यानी। झील रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के अहकामात पर इंतजामिया की कार्रवाई। फंसे 500 सियाहों को रेस्क्यू कर लिया। 117 से ज़ायद गाड़ियां फंस गई थीं। गिलियात में मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। धक्कन ततरीला के मकाम पर मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आया। पंजाब में दरिया बिफर गए, कई देहात ज़ेर-ए-आब। झंग में दरियाए चिनाब से मुल्हिका नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। 18,000 के मुकाम पर भी दरियाए चिनाब का पानी बाहर निकलने लगा। दरियाए सतलुज की सतह बुलंद। हैड गंडा सिंह के मकाम पर सतह 14 फीट बुलंद। कबीरवाला के मकाम पर दरियाए रावी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। किसानों की जमा पूंजी पानी में बह गई। मुतासर अफराद की बड़ी तादाद नकल मकानी करने पर मजबूर है। रुझान के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद। नशेबी इलाकों में पानी आ गया। चलास में जमबहक 3 साला अब्दुल हादी आहू और सिस्कियों में स्पुर्द खाक। लोधरा में 3 साला बच्चे की नमाज जनाजा में अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। लोधरा के खानदान के बायस अफराद कोस्टर में तफरीह के लिए चलास से नारान जाते हुए अलमनाक सानहे का शिकार हुए। बारिशों के एक और सिलसिले का अलर्ट। मुल्क भर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 28 जुलाई से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात समेत पंजाब के बेशतर जिला में बादल जमकर बरसेंगे।
KP के बालाई इलाकों समेत बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। जदीद मॉडल नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, निज़ाम के तहत नौजवानों को असली तकाज़ों से हम आहंग हुनर सिखाए जाएंगे। नौजवानों की तरबियत के बाद रोजगार यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। बैरून मुल्क रोजगार के हुसूल के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाए। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत, मईशत और सकाफ़त पर तबादला ख़याल। सदर ममलिकत ने कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाएँ। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब की मुआविनत पर शुक्रगुजार हैं। सदर ममलिकत ने खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। बानी की पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत के लिए अदालती दरवाजे पर दस्तक। अलीमा खान दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। दरखास्त में कहा, दस्तावेजात को बानी PTI के दस्तखत करा कर वापस नहीं किया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत की दरखास्त मुस्तरद की। जमानत मुस्तरद होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बानी का हक है। बानी PTI से वकालतनामा दस्तखत कराने की दरखास्त मंजूर। अदालत ने कहा, फौरी वकालतनामे साइन करवाकर साइला के हवाले किए जाएं। फैसले पर अमल दरामद करके सियासी जमात को साइड लाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। बैरिस्टर गौहर का दो टोक पैगाम। कहा, 39 पार्लियामेंटेरियन नाअहली के रिस्क पर हैं। ये इकदाम जमहूरियत के लिए खुशाइंद नहीं होगा। पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि फौरन फंडिंग हुई। मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद इल्ज़ामात भी लगाए गए। मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सख्ती कम की जाए। बैरिस्टर गौहर की हमाद अजहर की रिहाइश गाह आमद। वालिद वजारत दाखिला ने इंटरनेट कंपनियों से डाटा तक रसाई मांग ली। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया है। कलअदम तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए भर्तियां कर रही हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। बैरिस्टर अकील का सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। बोले, गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को दफातर खोलने की दावत दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश, खुदकार ब्लॉकिंग, डाटा तक रसाई थे। दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पीका के तहत काबिल सजा जुर्म है। लंदन हाई कोर्ट में सच और झूठ का मारिका। भगोड़े आदिल राजा को बदतरीन शिकस्त। आदिल राजा के तमाम सबूत फरेब पर मबनी निकले। बरतानवी अदालत में ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम। ब्रिगेडियर राशिद नसीर और पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तैयारी में नजर आई। लंदन हाई कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए। आदिल राजा का क्लेम गलत मालूमात पर मबनी दिखाई देता है। इंटेलिजेंस एजेंसी पर इल्जामात बनावटी नजर आते हैं। बरतानवी जज की आदिल राजा के जराए पर भी कड़ी तनकीद। रिमार्क्स दिए, JIT रिपोर्ट में ISI का जिक्र नहीं, फिर कैसे अरशद शरीफ के कातिल का इल्जाम लगाया। आदिल राजा के शवाहिद तरोड़ मरोड़ कर पेश करने पर जज का इजहार बरहमी। सेनेट की कायमा कमेटियों की कार्रवाइयों पर हुक्म इम्तना का इंकशाफ। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने तफसीलात ऐवान वाला को आगाह कर दिया। बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक दूसरी हाई कोर्ट से 2 नोटिस मौसूल हुए। ये नोटिस सेनेट कमेटियों की कार्रवाई रोकने के हवाले से हैं। अदालतों ने कमेटियों की कार्रवाई रोकने के अहकाम दिए हैं। अदालतों ने कहा है कि फला मामले को कमेटी में सुन ही नहीं सकते। ये मामला इंतहाई संजीदा और पार्लियामेंट से मजाक है। अटॉर्नी जनरल को तलब करके इस पर वजाहत तलब की जाए। पैनल ऑफ चेयर शहादत आवान ने अटॉर्नी जनरल को तलब करने की रूलिंग दे दी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, आपने रूलिंग दे दी, अब इस पर मजीद बात नहीं हो सकती। मुकर्ररा वक्त में केसेस को हल होना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहते हैं, कानून की बेहतरीन माहिर रोजाना की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर भी काम कर रहे हैं। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए।
कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। महंगाई की आग मजीद भड़क उठी। एक हफ्ते में शरह में 4.7% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गैस फी MMBTU 590 रुपये महंगी। टमाटर की फी किलो कीमत में 1900 रुपये तक इजाफा। बिजली के यूनिट की कीमत 1 रुपया बढ़ गई। अंडे फी दर्जन 11 रुपये महंगे। दही, ताज़ा दूध, चावल, दाल मसूर, बीफ भी महंगा। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। चीनी माफिया को काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। पंजाब में महंगाई कंट्रोल करने वाली पीरा फोर्स नाकाम। कराची में प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी चीनी की कीमतों पर काबू न पा सकी। शहर में चीनी 180 से 185 रुपए किलो। पंजाब में माने चाहे रेट चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों ने मिठास छीनने जाने पर हुकूमत कड़वी कड़वी सुना दी। 100 रुपये की आधा किलो दी है 100 रुपये की। हुकूमत कुछ कहती है और दुकान वाले कुछ कहते हैं, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। चीनी तो हर घर में इस्तेमाल होती है। रेट पता किया तो 250 रुपये से कम किलो चीनी नहीं है। महंगी भी है और कहाँ मिल रही है सस्ती, कोई चीज़ ही नहीं सस्ती मिल रही। सिंध हुकूमत का मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सड़कें, इमारात, मार्केट्स कौमी परचम, रोशनियों और बैनर्स से सजाई जाएंगी। खुसूसी बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों और अक़लियतों के लिए तकरीबात, मुशायरे, थिएटर, खेलों के मुकाबले, मिली नग़मे पेश होंगे। 14 अगस्त और मार्का हक की मुनासिबत से होने वाली तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का अक्कास होंगी। सिंध हुकूमत ये दिन एक अहद एक वादे के तौर पर मनाएगी। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर लड़की का मुबैना कातिल। मकतूल को कश्मीर से वापस लाकर मुबैना तौर पर कातिल किया गया। लड़की शादी शुदा थी, शौहर से झगड़े पर कश्मीर चली गई थी। रावलपिंडी पुलिस का कबर कुशाई और पोस्टमार्टम की इजाजत के लिए अदालत से रजू। सिविल जज का कबर कुशाई के लिए मकतूला के विरसा को नोटिस। लड़की को कत्ल करने के बाद रात में दफन कर दिया गया। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, एक शख्स हलाक, एक जख्मी। पुलिस मौके पर पहुंची तो 2 अफराद जख्मी हालत में पाए गए, जिनमें से एक मौके पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस ने मुश्तबा हमला आवर की तलाश शुरू कर दी। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, एक शख्स हलाक, एक जख्मी। पुलिस मौके पर पहुंची तो 2 अफराद जख्मी हालत में पाए गए, जिनमें से एक मौके पर ही दम तोड़ गया। ईरान और यूरोपीय रहनुमाओं के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात। ईरानी सफारतकारों की जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के नुमाइंदों से 4 घंटे तवील बातचीत। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। ईरानी सफारतकारों का कहना है मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मामले पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक कातिल के मुकदमे में गिरफ्तार। तलबा तहरीक में नौजवान के कातिल के मुकदमे में नामजद थे। उन पर मुकदमा बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमा ने दर्ज कराया था। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। थाईलैंड ने F-16 तैयारे फ़ज़ा में भेज दिए। कंबोडिया के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन हमले। कंबोडिया की जानिब से भी थाईलैंड पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी। थाई हुकूमत ने 18 अज़ला में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। बरतानिया में हलाल के नाम पर हराम गोश्त की फरोख्त महंगी पड़ गई। अदालत ने कंपनी के मालिक को 4 साल 8 माह कैद सुना दी। फूड कंपनी गुज़िश्ता 5 साल से होटल्स को हलाल के नाम पर हराम मुर्गी का गोश्त फराहम कर रही थी। गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ियां भी इंतहाई गंदी और बदबूदार थीं। फूड कंपनी के मालिक 40 साला हामिल मियां ने अदालत में इकरार जुर्म कर लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज, पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान वनडे में कप्तान बरकरार। शाहीन आफरीदी और बाबर आजम वनडे स्क्वाड में शामिल। 31 जुलाई
2 اور 3 अगस्त को 3 T20 मैचेस शेड्यूल। वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को खेले जाएंगे। टीम 27 जुलाई को अमेरिका पहुंचेगी।